Good morning to all. In my previous lecture, I have explained the theory related with the fasteners, design of fasteners. In that we have covered only one portion, and that is screwed joints. Those are also called as threaded joints. Okay, now I am showing all those pages once again because in some of images it was cut at somewhere, so I am showing those pages once again. Only in this first page there are only questions which are asked in exam, okay, on this topic. The questions covers both the joints, screwed joints and the welded joints. You can see the questions. Okay, now in these design questions there is only one question which is on threaded joints. The rest of the questions are for the welded joints. And in experiment number 10 we have to write down the design of threaded joints. So we'll take this one question from this exam, and the next question I'll take from the book. Okay, so this is the page which covers all the questions. Now next we have covered the theory, the formulas which we are going to use in the design of screwed joints. Okay, so the bolted joint subjected to eccentric load acting parallel to the axis of the bolt. If the bracket is fixed at the ceiling, then the position of the load and the position of the bolts will be like this, and line of action of the load will be parallel to the axis of the bolts. Okay, now the alphabets, the different alphabets which we are going to use, you can see those alphabets in the diagram. L1, L2 distance and L distance. Capital letter W stands for the load acting on the bracket. Okay, now the tilting edge is important because all the distances are taken from the tilting edge. Okay, now W is the load acting on the bracket, but the actual load which is going to act on the screws is WT, that is total load acting on the bracket in this case. Okay, now WT is the summation of the WT1 and WT2. And what is WT1 and T2? I have written over here: direct tensile load and the tensile load due to eccentricity of the load. The next page covers the rest of the formulas. There are total 4 formulas. Now the empirical relation जो कल के पेज में कट हो गया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है. DC is equal to 0.84 into D outer होता है. Okay, because whenever we attempt the numerical we have to write down the nominal diameter of the screw, बिकॉज जो स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं उसमें नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ होता है. ओके, और हमारे फॉर्मूले से कैलकुलेशन से जो निकलता है वो DC होता है. सो आफ्टर पुटिंग इन दिस एम्पिरिकल रिलेशन यू कैन कैलकुलेट D नॉमिनल. ओके, नाउ द नेक्स्ट केस, बोल्टेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू द इसेंट्रिक लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट. ठीक है, सो कल के मॉडल में हमने देखा है कि इफ़ द ब्रैकेट इज फिक्स टू द वॉल. ओके, सो इसमें केस जो है वो ऐसी होगी. एंड द टिल्टिंग एज, आई हैव मार्क देयर द टिल्टिंग एज. ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स L1, L2 एंड L डिस्टेंस. L1, the distance of the first pair of the bolts from the tilting edge. L2, the distance of the most heavily loaded of the heavily loaded bolts from the tilting edge. And small letter L, ये यहाँ पे पिछली केस से थोड़ा सा अलग है. L is the distance of the line of action of the W load acting on the bracket and up to the wall. Okay, so this distance is L. Now in this case the tensile and the shear, both the type of stresses act on the bolts. Okay, now so we have to take the different strengths also, the permissible tensile stress and the permissible shear stress for the bolt material. Okay, now here the formula, the final formulas is there will be 2 final formulas for the calculation of core diameter of the bolt. We'll calculate with these 2 formulas and we'll take the bigger value as the safer value. Okay, now sigma T will become WT equivalent divided by pi by 4 DC square, and tau will become WAC upon pi by 4 into DC square. Now what is WT equivalent and what is WS equivalent? So we have seen the formulas for those also.
that is direct shear load acting on each bolt, that is WS, W upon N, and tensile load on heavily loaded bolts are WT is equal to W into L into L2 upon 2 into L1 square plus L2 square. So since the bolts are subjected to both shear and the tensile load simultaneously, so equivalent tensile load, the formula will be this, and the equivalent shear load, the formula will be this. Okay, now here I roughly solve one numerical. Okay, you don't need to see this numerical, we are going to solve the numerical in this lecture. Okay, now those two numericals you can write in the experiment number 10. Okay, now 10 and 11, the aim of the experiment number 10 and 11 is same. So you can see the numerical written over here. A wall bracket is attached to a wall by means of 4 bolts, 2 at a distance of 50 mm from the lower edge and remaining 2 at a distance of 450 mm from the lower bolts. Okay, we have discussed this also in previous lecture. So from this statement we are going to get the distances L1, L2 and L. Okay, now I'll solve this numerical on this page. Okay, now the reference diagram for this numerical will be this. Okay, ये क्वेश्चन है और ये उसके लिए डायग्राम है. Okay, now after reading this question we will write down the given data. What is given in data? A wall bracket is attached to a wall by means of 4 bolts, 2 at a distance of 50 mm from the lower edge. Now lower edge जो होता है वही हमारा tilting edge बन जाता है. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं इन डायग्राम. So L1 is given 50 mm. एक बार अगर गिवन डेटा जो है वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसके आगे सिर्फ फार्मूला एंड कैलकुलेशन होता है. न्यूमेरिकल जो है वो वहाँ पे ही वाइंड अप हो जाता है. ओके, नाउ द डिस्टेंस ऑफ ये एक पेयर हो गया एंड द रिमेनिंग 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 mm फ्रॉम द लोअर बोल्ट्स. लोअर बोल्ट से अपर बोल्ट के पेयर का जो डिस्टेंस है वो 450 है. सो L2 विल बी 450 plus 50 because L2 is the distance from the tilting edge. तो tilting edge से फर्स्ट पेयर 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है एंड लोअर बोल्ट से ऊपर वाला जो बोल्ट है वो 450 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है. सो L2 विल बिकम 500 मिलीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट L is the distance of capital letter W up to the wall. तो वो दिया है कि वो पढ़ते हैं अभी आगे इक्वेशन. It supports a load of 50 kilonewton. Capital letter W is given 50 kilonewton at a distance of 500 millimeter from the wall. So L is given 500 millimeter. Assume the working stress in the tension as sigma T. Only one stress is given, 80 Newton per millimeter square. Okay, this question was asked in G scheme for 4 marks. Okay, now we'll solve this numerical. So what do we have to do? We have to calculate first the, since this is the case in which the bolts are going to subject to tensile as well as the shear load. Okay, so first we'll calculate that. We'll calculate the first direct shear load. Direct shear load on each bolt. डायरेक्ट shear load on each bolt. उसके लिए फॉर्मूला क्या, WS is equal to W upon N, number of bolts. Okay, so number of bolts it is given 4. It is given in question. A wall bracket is attached to a wall by means of 4 bolts. So small letter N is 4. N जो है वो 4 दिया हुआ है. Okay, so WS will be 50 divided by 4. Now use your own calculators and try to solve with me. 50 divided by 4. It comes 12.5 kilo Newton. So WS मिल गया. Now we will calculate tensile load on heavily loaded bolts. Okay, so WT will be W into L
इंटू L2, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलेज, क्योंकि फार्मूलेज पे ही पूरा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है कंपेयर टू नकल एंड क्वार्टर जॉइंट के कैलकुलेशन से। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है। ओके, सो W इज़ गिवन 50 इंटू L इज़ 500 इंटू L2 इज़ ऑल्सो 500 डिवाइड बाय 2 इंटू L1 स्क्वेयर 50 स्क्वेयर प्लस L2 इज़ 500 स्क्वेयर. Okay, now what do? We will put all these values in calculator. अभी देखो मैं कैसे डालती हूँ. 500 का स्क्वायर प्लस इसमें मुझे ऐड करना है 50 का स्क्वायर इंटू 2. ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर. ठीक है, अब मैं लेती है न्यूमरेटर 50 इंटू 500 इंटू 500 डिवाइड बाय आंसर. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इट कम्स 24.75 किलो न्यूटन. यहाँ पे हम लोगों ने W किलो में पुट किया, इसलिए मेरा WT भी किलो न्यूटन में, WS भी मेरा किलो न्यूटन में. नाउ इन गिवन डेटा ओनली सिग्मा T इज़ गिवन, टाउ नहीं दिया हुआ है. सो अभी मेरे पास जो ये दो ऑप्शंस थे कि मैं WT इक्विवेलेंट टू या WS इक्विवेलेंट, आई विल टेक WT इक्विवेलेंट बिकॉज WT इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में सिग्मा T आता है और गिवन डेटा में सिग्मा T टेंसाइल, परमिसिबल टेंसाइल की वैल्यू दी हुई है, शियर के लिए नहीं दी हुई है. सो आई विल टेक द इक्विवेलेंट टेंसाइल लोड since the bolts are subjected to both shear and the tensile load simultaneously. So equivalent tensile load, I will take equivalent tensile load acting on bolt. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? WT equivalent is equal to 1/2 WT tensile प्लस स्क्वायर रूट ऑफ WT का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ WS का स्क्वायर. ये देखो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया है. ठीक है, अब इसमें जो WT और WS है ये तुमने प्रीवियस स्टेप्स में कैलकुलेट किया है, वो तुमको यहाँ पे पुट करके सिर्फ WT इक्विवेलेंट निकालना है. ओके, so I will calculate WT equivalent is equal to 1/2 WT कितना है? 24.75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ WT, अगेन इट इज़ 24.75 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ WS का स्क्वायर. WS है 12.5 का स्क्वायर. देखो यहाँ पे हम लोगों ने WS कैलकुलेट किया है. ओके, नाउ आई विल पुट दिस इन कैलकुलेटर. ठीक है, अभी अगेन मैं कैसे रखती हूँ कैलकुलेटर में, देखो ऐसे रखना सीखो कि जो ये नहीं होना चाहिए, एरर्स नहीं आना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. 24.75 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 12.5 का स्क्वायर. ओके, मैंने 2 ब्रैकेट्स लिए थे तो 2 ब्रैकेट्स लिए ना. स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर प्लस 24.75 डिवाइड बाय 2, उसका हाफ है ना तो उसका डिवाइड बाय 2. तो WT इक्विवेलेंट आ गया मेरा 29.96 किलो न्यूटन. ओके, ये आ गया मेरा WT इक्विवेलेंट. ठीक है, अब मैं इसके आगे इसको सॉल्व करती हूँ. ठीक है, WT इक्विवेलेंट आ गया ना. आफ्टर WT इक्विवेलेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है? Put this WT equivalent in this formula of strength sigma T. Okay, so consider tensile failure of bolts. Okay, so ये फॉर्मूला मेरा आ गया WT इज इक्वल टू WT इक्विवेलेंट डिवाइड बाय पाई बाई 4 इंटू DC स्क्वेयर. हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो विल गेट DC, द कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट. ओके, सो नॉट सिग्मा T जो है ये इक्वेशन में कितना दिया हुआ है? इट इज़ गिवन 80
ठीक है। सिग्मा टी कितना दिया हुआ है 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे पुट करते टाइम देखो डब्ल्यू टी इक्विवेलेंट जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर ये किलो न्यूटन में, सो मैं फॉर्मूले में पुट करने के टाइम इसको न्यूटन में पुट करेगी बिकॉज मेरा सिग्मा टी न्यूटन में है। 29.96 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन टू न्यूटन हो गया, डिवाइड बाय π/4 इंटू DC²। अभी तुमको सिर्फ इसको एडजस्ट करना है प्रॉपरली एंड DC का वैल्यू निकालना है। ओके, मैं क्या करती है DC का साइड चेंज कर देती है। ये π/4 है, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर, सो दिस विल बिकम 4 इंटू 29.96 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई इंटू 80 यहाँ पे न्यूमरेटर में था, जब साइड चेंज किया डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करती है ये कैलकुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ माय कैलकुलेटर। यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व विद मी। 4 इंटू 29.96 इंटू 10⁻³ को मैं 1000 लिखती है, डिवाइड बाय पाई इंटू 80। ओके, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब जो मेरे पास ये आंसर आया ये DC² है, मैं क्या करती है इसका रूट ले लेती है, तो मुझे मिल जाता है 21.836। सो DC मुझे मिल गया 21.836 मिलीमीटर। ओके, नाउ DC से इसका साइज नहीं मिलता है हमको, वी नीड द डिनोमिनल चाहिए। सो वील यूज़ द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन DC एंड DO, और वो क्या है DC इज इक्वल टू 0.84 डी नॉमिनल होता है, ठीक है। मेरे पास DC का वैल्यू है, डी नॉमिनल चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट करेगी डी नॉमिनल इज इक्वल टू DC अपॉन 0.84। ना DC मेरा कितना आया 21.836 है, डिवाइड बाय 0.84, ठीक है। 21.836 डिवाइड बाय 0.84, 25.99। सो डी आउटर आ गया मेरा 25.99, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली हमको जो है वो डिज़ाइन डेटा बुक से या डिज़ाइन डेटा के टेबल से निकालना रहता है कि नॉमिनल का एक स्टैंडर्ड साइज विच विल बी वेरी क्लोजर टू दिस वैल्यू, वो लेना रहती है। तो अभी वो डेटा का यहाँ पे पेज तो दिया हुआ नहीं है इक्वेशन में, सो व्हाट विल डू, विल सिंप्लीफाई, विल सिंपली राउंड इट टू द नेक्स्ट नंबर। सो डी नॉमिनल मेरा बन गया 26 मिलीमीटर, मतलब जो मैं बोल्ट यूज़ करूँगी वो मैं M26 का बोल्ट यूज़ करूँगी। द साइज ऑफ बोल्ट विल बी M26। अब ये M26 का जो बोल्ट मैं सिलेक्ट करूँगी उसका जो भी कोर डायमीटर रहेगा उस बोल्ट के लिए मैं वो वैल्यू लूँगी, मेरा ये कैलकुलेशन किया हुआ वैल्यू नहीं दी हमको। ये हमारा फाइनल आंसर है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द बोल्ट। ओके, सो हियर दिस न्यूमेरिकल एंड्स। So we have covered one numerical in which the bolted joint subjected to eccentric load acting perpendicular to the axis of the bolts था। Okay, now we will take the parallel to the axis of the bolt. Now bolted joint subjected to eccentric load acting parallel to the axis of the bolt, मतलब ये वाली केस के लिए अब मैं न्यूमेरिकल लेती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट आस्क्ड इन एग्जाम बट मैंने वही यहाँ पर लिखा है। एज bracket shown in figure, the diagram is given in question. Supports a load of 30 kilonewton. Determine the size of bolts if allowable tensile stress is 60 megapascal. So sigma T is given 60 megapascal. सिर्फ स्टेटमेंट में ये एक ही डेटा दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ द डेटा वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द डायग्राम गिवन। ओके, सो डायग्राम देख के मुझे समझ में आता है। अभी देखो टिल्टिंग एज भी मार्क करके दिया हुआ है डायग्राम में। सो मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकलती हूँ। L1 कितना रहेगा, L1 विल बी 80 मिलीमीटर। L2 आगे जो मोस्ट हेवीली लोडेड बोल्ट है उसका डिस्टेंस है अप टू द टिल्टिंग एज, सो दिस विल बी 250 मिलीमीटर। L इज द डिस्टेंस ऑफ W, सो दिस इज 500 मिलीमीटर एंड कैपिटल लेटर W इज द लोड एक्टिंग ऑन द ब्रैकेट, इट इज गिवन 30 किलो न्यूटन। ओके, इट इज गिवन 30 किलो न्यूटन। नाउ इन दिस केस the W is parallel to the axis of the bolt। हमको इस केस में क्या करना रहता है, we have to calculate WT1 and WT2। what is WT1 and what is WT2?
WT1 is direct tensile load on each bolt and WT2 is the tensile load due to eccentricity of the load. So first we will calculate WT1. So we have to write direct tensile load on each bolt. ओके ना नंबर ऑफ बोल्ट्स आर गिवन 4. ये हमको डायग्राम से पता चलता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है, डायग्राम से हमको पता चलता है. सो WT1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका, W अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट. सो W इज गिवन 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स आर गिवन 4. ओके, सो 30 डिवाइड बाय 4 इट कम्स 7.5 kilo Newton because W is given in kilo Newton. Okay, now we will calculate WT2 that is tensile load due to eccentricity of load. Due to eccentricity of load, WT2. What is the formula for WT2? ये most heavily loaded bolts का formula होता है, W into L into L2. Same formula we have applied in the previous numerical. ये एक ही formula है जो थोड़ा सा बड़ा है, उसको याद रखना है तुमको. Okay, now we'll put the values and we'll calculate WT2. WT2 is equal to, now W is 30 into L 500 into L2 250 divided by 2 into L1 square 80 square plus L2 square 250 square. हाँ, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है बट प्रीवियस वाले में डायग्राम नहीं दिया हुआ था. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम द फॉर्मूलेज का एक्सप्लेनेशन में मैंने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम तुमको वहाँ पर ड्रॉ करना है. सो WT2 मिल गया मुझे. अब मैं इसको अपने कैलकुलेटर में डालती हूँ, सिर्फ देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. ओके, मैं क्या करती हूँ, पहले डिनोमिनेटर जो है वो निकाल लेती हूँ. 250 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इंटू 2, ये मिल गया मुझे डिनोमिनेटर. नाउ आई कैलकुलेट न्यूमरेटर. 30 इंटू 500 डिवाइड बाय आंसर WT2 मिल गया 27.21 किलो न्यूटन, क्योंकि हमारा W किलो न्यूटन में तो WT2 भी किलो न्यूटन में, WT1 भी किलो न्यूटन में. ओके, नाउ इन दिस केस द टोटल WT जो है वो है टोटल लोड एक्टिंग ऑन द टोटल टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन द मोस्ट हेवीली लोडेड बोल्ट्स. WT total tensile load on most heavily loaded. ये इतना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, टोटल टेंसाइल लोड लिखो ओनली ऑन द बोल्ट. सो WT मेरा यहाँ पे होता है WT1 प्लस WT2, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर नहीं रहता है, दोनों का नेचर टेंसाइल है, तो डायरेक्टली वी कैन ऐड WT1 एंड WT2. 7.5 प्लस 27.21 34.71 किलो न्यूटन. सो मेरे को मिल गया टोटल टेंसाइल मैक्सिमम टोटल टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन द बोल्ट. वो चारों में से जो मैक्सिमम किसी बोल्ट पे एक्ट करता है तो वो मैक्सिमम का वैल्यू इतना है. ओके, नाउ विल कंसीडर फेलियर ऑफ बोल्ट ड्यू टू टेंशन. ओके, सो फॉर्मूला है सिग्मा टी इज इक्वल टू WT अपॉन पाई बाई 4 DC स्क्वेयर. ओके, ना सिग्मा टी ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सिग्मा टी इज गिवन 60 मेगापास्कल. मेगापास्कल इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर. ओके, सो ये न्यूटन में आ गया तो WT भी पुट करते टाइम हमको न्यूटन में करना पड़ेगा, यहाँ मेरे कैलकुलेशन में किलो न्यूटन में है. सो दिस इज 60 इज इक्वल टू 34.71 into 10⁻³ डिवाइड बाय पाई बाई 4 into DC स्क्वेयर. ओके,
ना आई चेंज द साइड ऑफ DC स्क्वायर, अननोन का साइड चेंज करो, बाकी सबको यहीं पर रखो, ठीक है। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी ये स्टेप बताई, बिल्कुल सेम तरीके से तुमको इधर एडजस्ट करना है इसको। पाई इंटू 60, नाउ यूज़ योर कैलकुलेटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले न्यूमेरेटर को एक ब्रैकेट, डिनोमिनेटर के लिए एक ब्रैकेट। 4 इंटू 34.71 इंटू 1000 डिवाइड बाय पाई इंटू 60, ये मुझे मिल गया है, ये DC स्क्वायर है। आई वॉन्ट DC टू टेक द रूट ऑफ आंसर 27.13, सो DC मुझे मिल गया 27.13 मिलीमीटर। ओके, नाउ DC का साइज नहीं दिया हुआ था स्टैंडर्ड टेबल में। विल कैलकुलेट D नॉमिनल विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल रिलेशन, और रिलेशन क्या रहता है, DC अपॉन 0.84। ओके, तो ये मिल गया मुझे 27.13 डिवाइड बाय 0.84, 27.13 डिवाइड बाय 0.84, तो डिनोमिनल मेरे को मिल गया 32.29 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ आई डोंट हैव स्टैंडर्ड टेबल राइट नाउ, बट विल राउंड इट टू नेक्स्ट इवन नंबर पे। 33 पे नहीं राउंड करते हुए नेक्स्ट इवन नंबर पे राउंड कर देते हैं। सो डी आउटर विल बी 34 मिलीमीटर, मतलब जो हम बोल्ट यूज़ करेंगे वो M34 साइज़ का बोल्ट यूज़ करेंगे। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सो सॉल्व दीज टू न्यूमेरिकल्स विथ diagram with given data and all the calculation in experiment number 10.